Computer science, who are from computer science? Who are from electrical? And from civil? Civil is there, okay. And all are final year? Third year is there? No? Is there anyone from third year? Okay, right. So you have to listen to my this presentation very carefully, right? Because I'm going to tell you all the career options which you will be having after you complete your BTech. I think you are all are in the 7th semester right now. So आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए that what options you have. No doubt you have choose this civil as a branch or electrical as a branch when you look for the government job, especially in your state. Although you are from Himachal Pradesh, majority Himachal Pradesh, you are from you're from Haryana and you Sikkim or any other state? Any other state students? Okay, that you're from UP. Okay, so I'm going to tell you all the options which you are having once you complete your BTech, right? Some option which normally you have. So some of the career options you must be knowing कि सर एक गेट का एग्जाम होता है, स्टेट जेईई एग्जाम्स होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जॉब इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. So I'm going to cover all those options over here, right? How you have to proceed for that? First of all, what options you have? Second, how you have to proceed for that? How you have to prepare for that? I'm going to cover all those options. So what you have to do, you have to listen to my presentation very carefully, and in the end, you have to ask me some questions from there. Okay, sir, you told me this thing. How I have to proceed further for this, or what are the more career options after that? Sir, I'm not looking for all these options which you told me. I am looking for this option. So this I am going to basically ask you in the end, right? So listen this my presentation very carefully because I don't think कि जो मैं आज आपको चीजें बताने वाला हूँ, I am assuming that more than 80% options आपको नहीं पता होंगे उसके अंदर, और वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके करियर के लिए. क्योंकि अदरवाइज होता क्या है कि हम लोग वो सेम चीजें जो प्रोसीजर है या जो हमारा इकोसिस्टम है कि जिसमें हमें वो अलाउ करता है कि ठीक है मेरे को स्टेट जॉब के लिए जाना है, आई हैव टू गो फॉर द स्टेट जॉब, या यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए भी कंपनीज आनी है, तो मैं वही सिर्फ 2-4 ऑप्शंस लेके बैठता हूँ या वो एज्यूम करके बैठता हूँ कि मेरे पास यही ऑप्शंस हैं. उसके अलावा बहुत ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल होती है. इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर द हायर स्टडीज? Means anyone is here who is looking for the higher studies, that anybody want to go for the master's program either India or either abroad? Is there anyone who is looking for the higher studies? Okay, good, very good. In India or abroad you are looking for? Yes, very good. And how many of you are here who is looking for immediate job after you complete your BTech? Come. So majority of you are looking for the job. यार उनको तो डेली देखते हो, मेरे को देख लो यार, right? So how many of you are looking for the job immediately after you complete your BTech? जॉब के लिए कौन कौन देख रहे हैं? ओके, 3-4 हाथ खड़े हुए हायर स्टडीज के लिए, 2-3 हाथ खड़े हुए जॉब के लिए. व्हाट एल्स ऑप्शन यू आर हैविंग? क्या देखते हो इसके अलावा, और क्या ऑप्शन तुम्हारे पास है? क्या करना चाहते हो बीटेक के बाद? व्हाट अदर ऑप्शन यू हैव? बीटेक क्यों कर रहे हो? मेक दिस प्रेजेंटेशन वेरी इंटरेक्टिव. मुंह बंद करके मत बैठना, जितना बोलोगे कॉलेज से मत घबराना कि कॉलेज क्या बोलेगा. आप लोगों को स्पीक करना है, बोलना है. बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? हाँ या ना, यस और नो? तो बोलो. कभी ठंड लग रही है, अभी चाय चुई पी के नहीं मॉर्निंग में? नहीं पिया? पिया कि नहीं पिया? घर से तो पी के आए होंगे, तो चाय जरूरी है क्या बोलने के लिए? यस सर, तो पी के आना था फिर आपको, राइट? देखो जितना आप लोग बोलेंगे ना, मे भी शायद मैं आपको हेल्प कर सकूं उसमें. और वो चीज दिमाग से टोटली निकाल दो कि आई एम फ्रॉम द कोचिंग बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे कोचिंग की बात करने आया हूं. वो बिल्कुल अलग चीज है. मैं यहाँ पे जो आप लोगों के लिए पास आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या है. लेकिन अगर तुम लोग बोलोगे नहीं ना, यार मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा बोलने के लिए कि ठीक है यार कोई बोलने को रेडी नहीं है, मे बी आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हो, तो बड़ा ट्रबल हो जाएगा उस चीज के लिए मेरे को बोलने के लिए. अच्छा, तो क्या ऑप्शन देख रहे हैं? जॉब कौन लोग करना चाहते हैं बीटेक के बाद? गवर्नमेंट जॉब कौन करना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हायर स्टडीज, बिजनेस, अपना बिजनेस,
वेरी गुड। आप लोग क्या करना चाहते हो? कुछ भी नहीं याद कर रहे। और क्या ऑप्शन बचा है? क्या करना चाहते हो बीटेक के बाद? ये भी सोचा ही नहीं है। हाँ, 7 सेमेस्टर में हो गए यार, कब सोचोगे? पेरेंट्स सिर्फ पैसा लगा पाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स सिर्फ आपको पैसा दे पाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। क्या सोच रहे हो? ऑप्शंस क्या है? क्या सोच के बैठे हो यू ऑल? यार ऐसे थोड़ा होगा यार, लड़की देखने जाओगे ऐसे करोगी क्या? बोलना तो पड़ेगा यार, अदरवाइज आज का टाइम ऐसा है कि अगर तुम नहीं बोलोगे मे बी डिफिकल्ट हो जाएगा आपको सर्वाइव करना। अदरवाइज फिर वही चीज है, वो 10, 20, 30 हजार की नौकरी लेके बैठोगे तो आपके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। तो हमें बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एटलीस्ट मेरे को ये तो बताओ तुम लोग करना क्या चाहते हो? अभी तक मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला है, मेरे को 30-40% लोगों ने बताई है बातें, ये चीजें हैं। ये पता ही नहीं है कि होता क्या है इसके बाद, बीटेक के बाद करना क्या है। बोलो यार, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? अंडरस्टैंड हिंदी करते हो? अंडरस्टैंड? यस। हाँ बोलो, क्योंकि तुम मम करके बैठोगे ना, मैं अपना बोल के चला जाऊंगा, दैट विल बी द वन वे कम्युनिकेशन। और फिर लगेगा ठीक है, एक आया हुआ आया के बोल के चला गया। ऐसा नहीं करना है मेरे को। प्रेजेंटेशन हमें करनी है, डिस्कशन करनी है हमें। तो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी ने हाथ खड़े किए थे? अच्छा, कितने लोग पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं? पब्लिक सेक्टर में पीएसयू में, पता है पब्लिक सेक्टर कुछ होते हैं, पीएसयू कुछ होते हैं। हाँ, यहां पे कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। अदरवाइज ज्वाइंट कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होते रहेंगे। देखो, कॉलेज कोई प्लेसमेंट नहीं करवा के देगा, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी है जो तुम्हें प्लेसमेंट देगी, जो तुम्हें जॉब देगा। या अगर सपोज तुम अपना बिजनेस भी करते हो, वो तुम्हारी अपनी कैपेबिलिटी होगी जिसके बेस पे तुम ग्रो कर पाओगे। आइदर यू डू द जॉब, चाहे तुम अपना बिजनेस करो, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी होगी। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। ठीक है, अगर तुम बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अपनी बैकग्राउंड आपका बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियली, कि ठीक है बिजनेस चल रहा है, उसी में कर लेंगे, दैट इज द अदर पार्ट। अदरवाइज आपने क्या किया, वो तो तुम्हारे पेरेंट्स ने किया है, आपने क्या किया, आप उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो? या तो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, जिसके लिए तुम्हारा प्लान पूरा रेडी होना चाहिए तुम्हारे पास, कि भाई ठीक है यहां तक हमारा है, मेरी आज 4 आउटलेट्स हैं, मेरे को उसको 4 को 10 करना है अगले 10 साल के अंदर। तो कुछ ना कुछ बच्चे आपको प्लान करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जो जो हम बोलते हैं एक्सपेंसिव है ना, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके देखना कि पापा ये बताओ कि आज के साल 20 साल पहले, 15 साल पहले जो एक्सपेंसिव होते थे और जो आज के एक्सपेंसिव हैं, उसका इनकम के साथ कितना रिलेशन है। सेविंग भी हो जाती थी, आज के टाइम पे सेविंग नहीं होती है, बचते ही नहीं है पैसे। पूछ के देखना, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके देखना कि किस तरीके से तुम्हारी वो फीसिस वगैरह पे करने होंगे, उनके कभी बैठ के डिस्कस करना ये जरूर डिस्कस। तो इस कारण से मेरा आपको ये एक सजेशन है कि ये अभी चीजों को सोचना स्टार्ट कर दो। यू आर इन द 7th सेमेस्टर, एक सेमेस्टर के बाद 6-8 महीने के बाद आप लोग पास आउट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि मेरे को उसके बाद ही सोचना है, तो मे भी शायद आप लोग लेट हो जाओगे, फिर साल सोचोगे, फिर उसके बाद साल करना स्टार्ट करोगे, फिर उसके 1-2 साल के बाद जाके मतलब 4-5 साल के बाद वो चीज मिलेगी शायद जिसके बारे में तुम बिल्कुल इमीडिएटली ले सकते थे। ऑप्शंस आर देयर, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं यहां पे जो अपना प्रेजेंटेशन है उसी चीज से लेके आपको डिस्कस करूंगा कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या होती हैं। पहले मैं एक नर्शल में डिस्कस करता हूं कि व्हेन यू कंप्लीट योर बीटेक व्हाट ऑल ऑप्शंस यू आर हैविंग, क्या क्या ऑप्शंस होती है तुम्हारे पास। प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, प्राइवेट में तुम जॉब कर सकते हो, यस और नो। गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन होता है, अपनी स्टेट में तुम सर्व कर सकते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ले सकते हो, यही ऑप्शन होता है दूसरा। तीसरा ऑप्शन होता है तुम्हारे पास पब्लिक सेक्टर का ऑप्शन होता है। पब्लिक सेक्टर कुछ बताओगे मेरे को, नाम पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? व्हाट डू मीन बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? पीएसयूज होते हैं, कोई नाम बताओगे पब्लिक सेक्टर का? ओएनजीसी हो गया, सेल, गेल, आप पेट्रोल पंप्स हमारे, आईओसीएल, एचपीसीएल, ये सब पब्लिक सेक्टर है। आपके बैंक्स पब्लिक सेक्टर है, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर है। आइए, ये रिसर्च लैब्स, आईएसआरओ, डीआरडीओ, बीएआरसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये क्या सारी की सारी क्या है? ये पब्लिक सेक्टर है। 250 प्लस पीएसयूज हैं। तो तीसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि आप पब्लिक सेक्टर में जा सकते हो, राइट, यस और नो। चौथा, और तुम हायर स्टडीज के लिए देख सकते हो। हायर स्टडीज में क्या ऑप्शन आती है? यू आर हैविंग द मास्टर्स प्रोग्राम, एमटेक करने के लिए जा सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो। अब्रॉड का भी एक ऑप्शन होता है हायर स्टडीज के लिए, हाँ या ना? होता ही नहीं होता। और क्या ऑप्शन होता है? पांचवा, अगर मैं बात करूं कि हायर स्टडीज को भी 2 कैटेगरीज में तुम डिवाइड कर सकते हो कि सर मेरे को अपनी टेक्निकल डोमेन में रहना है, मास्टर्स प्रोग्राम ही करनी है, एमटेक प्रोग्राम करना है, एमएस प्रोग्राम करना है, और अब तो डायरेक्ट पीएचडी का भी ऑप्शन हो गया ओपन
कि आफ्टर द बीटेक यू कैन डू द डायरेक्ट पीएचडी ऑल्सो, और आपके पास मैनेजमेंट डोमेन में भी तुम जा सकते हो, एमबीए कर सकते हो, उसके बाद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और लास्ट वन इज योर बिजनेस, आप लोग अपना बिजनेस कर सकते हो। यही ऑप्शंस बची है, दीज ऑल ऑप्शंस यू आर हैविंग वंस यू कंप्लीट योर बीटेक, यस और नो? कोई और इसके अलावा बचा? अब मैं आपको वो एक चीज बताने वाला हूं कि ये सारी की सारी ऑप्शन जो है वो एक एग्जाम के थ्रू ओपन हो जाती है। एंड व्हाट इज दैट एग्जाम? गेट एग्जाम। दैट इज एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। दैट इज वाई आई कॉल दिस एज अ ब्यूटीफुल एग्जाम। ये ब्यूटीफुल एग्जाम है क्योंकि जितने भी तुम्हारे पास करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारी की सारी एक ही एग्जाम के थ्रू ओपन हो जाती है, एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जाम। मैं यहां पे गेट एग्जाम की प्रमोशन नहीं करने आया हूं, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट द गेट एग्जाम, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीजें बताने आया हूं कि शायद मे बी आप लोगों में से 2-4 मोटिवेट हो, सुन के कुछ दिमाग की बत्तियां खुले कि हाँ सर ये भी तो है, ये मेरे को यही तो मैंने सोचा था, या इस चीज में तो मेरा टेम्परामेंट लाइक करता है, या मेरा इंटरेस्ट सर इसी चीज में है, हाँ सर ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई, मैं ये करना चाहता हूं, मैं आई एम हियर फॉर दैट। सो यू हैव टू लिसन टू मी, मेरी तरफ ही देखना और कहीं नहीं देखना। और इस आधे घंटे की प्रेजेंटेशन के अंदर लर्निंग करनी है जितनी ज्यादा हो सके। एटलीस्ट आपने करना है नहीं करना वो एक अलग मैटर है, एटलीस्ट तुम्हें वो ऑप्शन पता होनी चाहिए। सेकेंडली एटलीस्ट तुम अपने जूनियर्स को गाइड कर सको, क्योंकि तुम लोग क्या होते हैं उनके लिए एक रोल मॉडल्स होते हैं। जो सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, वो सीनियर को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? वो आप लोगों से डिस्कशन भी करते होंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती होगी कॉलेज में या कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम आता होगा, वो लोग आपसे डिस्कस करते होंगे, करते ही नहीं करते जूनियर्स? यस और नो? चलो नो वाले केस भी होते होंगे, लेकिन जिसके साथ होते होंगे करते होंगे। आप लोगों को प्रॉब्लम आती है किससे डिस्कस करते हो? टीचर से करते होंगे, पेरेंट्स से डिस्कस करते हो, या इसमें भी नो है? या इसमें भी नो है? हाँ नो सर कि यस सर? कंफ्यूज हो गई यस सर? हाँ टीचर से डिस्कस करते हो, मतलब कोई ना कोई होता है जिसको आप फॉलो करते हो, जिसके साथ चीजों का डिस्कशन करते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हमें डिस्कशंस करनी होती है और उसके साथ डिस्कशन करनी होती है। आप किसके साथ डिस्कस, आपकी लड़ाई होगी, किसके साथ डिस्कशन करोगे? फ्रेंड्स के साथ, है ना? पेरेंट्स को बताओगे आगे कि मेरी लड़ाई होगी? जब पढ़ाई की बात आएगी, पैसे की बात आएगी, फीस देने की बात आएगी, किससे डिस्कस करोगे? दोस्तों के साथ? पेरेंट्स के साथ? नंबर लगाने की बात आएगी, सर थोड़े नंबर दे दो मेरे परसेंटेज बढ़ जाएगी, किससे बात करोगे? टीचर्स के साथ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप हमेशा कोई भी चीज का डिस्कशन करना चाहते हो, आप उसी से डिस्कस करते हो कि जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज है। अगर किसी ने, आपका कोई जूनियर है, अगर सपोज उसको डिस्कस करना है स्टडी से रिलेटेड, भाई भैया बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं, आपको क्या लगता है वो क्लास के टॉपर के पास जाएगा या लड़ाई करने के पास जाएगा? किसके पास जाकर डिस्कस करेगा वो? सिंपल सी चीज है। तो जिसने नो बोला वो सोच सकते हैं क्या होंगे, जिसने यस बोला वो सोच सकते हैं क्या होंगे। समझ मेरी बहन? लड़ाई होगी तो अपने सीनियर में उसके पास जाएगा जो वो उसका सोल्यूशन दे सकता है। तो हमें चीजों का उनके साथ डिस्कशन करना होता है कि जो आपको लगता है कि हमें वो सोल्यूशन दे सकते हैं उस चीज के लिए, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे को क्यों सुनोगे? आप मेरे को इसलिए सुनोगे क्योंकि मैंने ये जितने भी आपको ऑप्शंस बताया, वी आर द एजेंसी जो उस चीजों में डील करती है और जो स्टूडेंट्स को गाइड करती है, और जो स्टूडेंट्स का इस डोमेन में जो करियर बनाना चाहते हैं, हम उनको प्रिपेयर करते हैं उन चीजों के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी कारण से आप मेरे को इसलिए सुनोगे कि ठीक है सर मैं बात कर रहा हूं कि तुम आईटी जाओ और मास्टर्स करने के लिए तुम्हारा 40-50 लाख का पैकेज लगेगा। आप बोलोगे ये क्या ऐसे लग जाएगा 40? क्यों मैं मानूं इसकी बात? लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि वी आर द वन, कि जो आईटीज में जो स्टूडेंट्स मास्टर्स प्रोग्राम के लिए करने जाते हैं वो हमसे ही फॉलो करके जाते हैं। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है योरपीडिया के नाम से, वो हमें फॉलो करके जाते हैं। 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर वो हमें फॉलो करते हैं, और जब वो जाते हैं फिर बताते हैं हमें कि सर मेरा इतना पैकेज लग गया, मेरा इतना पैकेज लग गया। अब उनका इतना पैकेज लगा, उसने हमें इंफॉर्मेशन बताई, हमने इंफॉर्मेशन आपको बता दी, सो दैट कि तुम्हें मोटिवेशन मिले उस चीज का कि ऐसे अगर वो कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। आप में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ इसमें एसजेवीएन में, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर है या नहीं है? ये हिमाचल के अंदर ही है, पता है इसके बारे में? नहीं पता? बहुत बहुत बच्चों का, सिविल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स का, बहुत लोगों का वो ड्रीम कंपनी होता है क्योंकि मेरे को हिमाचल में ही रहना है, क्योंकि हिमाचल का जो स्टूडेंट है वो हिमाचल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है ना? क्योंकि मेरे को लगता है कि हिमाचल के लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ज्यादा।
हाँ या ना? ऐसा है या नहीं है? हाँ या ना तो बोल दो। है नहीं? चंडीगढ़ तक जाएंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाते। उसे भी बन जाते हैं? कहां गए? नहीं नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूं, मैं वो जाना चाहिए हमें, क्योंकि जितना तुम निकलोगे अपने रीजन से बाहर ना, उतना तुम्हारा लर्निंग होगा, उतना तुम्हारा लर्निंग होगा। स्माइल कर सकते हो, फोटो हो रही है आपकी। उन्होंने खींच लेनी है फोटो, मेरे को देख लो, स्मार्ट नहीं हूं मैं? है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है अभी सोचना पड़ेगा अपने करियर के बारे में, क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम्हें उन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर 2 4 5 साल के बाद तुम्हें पता लगेगा मेरा फ्रेंड उस कॉलेज में था, उसने ये तैयारी करी, उसका आज 15 20 लाख का पैकेज लेके बैठा है, उसके फादर ने उसको ये गाइड किया, या उसका फ्रेंड ये था, मेरा जूनियर था, मेरा सीनियर था। फिर हमें सिर्फ एक ही चीज होती है, रिग्रेट होता है, या एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? बेकार है तो, है ना? वो बोलते हैं ना कि ग्रेप्स आर सॉर, सुने नहीं सुने? अंगूर खट्टे हैं, वो चीज हो जाती है। फिर गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? कि मेरे से नहीं हो सकता, तो मेरे से नहीं पकड़े जा रहे, उतर नहीं रहे हैं मेरे से ग्रेप, तो इट मीन्स कि वो खट्टे हैं, मेरे को नहीं चाहिए। खा के मैंने देखे नहीं, लेकिन मेरे से पकड़ा नहीं गया। ये फैक्ट्स हैं, रियलिटीज हैं। मैं क्यों इतने तुम्हें पंच मार रहा हूं कि तुम लोग जागो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को एनर्जी नहीं दिख रहा। सीरियसली मेरे को लग रहा है मेरी 50वीं प्रेजेंटेशन होगी पिछले 2 3 महीने के अंदर। एनर्जी नहीं है तुम लोगों में, दिख ही नहीं रहे चेहरे, तुम सुनना चाहते हो मेरे को सीरियसली, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं कोई और भी आया पहले, इससे पहले इस सेमेस्टर में कोई आया बताने के लिए आपको कुछ? हाँ, किस टॉपिक से रिलेटेड था? किस टॉपिक से रिलेटेड था वो? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। वो तो डिफरेंट चीज है, वो एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आज चीजें बताने वाला हूं। वो एक डोमेन है उसका, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, एआई के बारे में। लेकिन सीरियसली मेरे को यही नहीं लग रहा है कि आप लोग मेरे को सुनना चाहते हैं। सीरियसली पता नहीं क्या है, मेरे को एनर्जी नहीं लग रही आप लोगों में। चलो गुड है, अगर सुनना चाहते तो अच्छी बात है। देखो थोड़ा सा पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं। सी वी आर, लिसन लिसन प्लीज, वो बीच में चलता रहेगा ये, लेकिन वापस अपने ट्रैक पे आ जाना जल्दी से। देखो हमारे 3 प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट इज द इंजीनियर्स करियर पॉइंट, वो स्टार्टेड इन 2011। 2011 में हमने स्टार्ट किया था। हमने इस मोटो से, कोई भी हम जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो इस मोटो से स्टार्ट करते हैं कि हमें बीटेक के बाद तुम्हारे करियर तक जितना भी ऑप्शंस अवेलेबल है, हमें उस चीज का, हमें उसमें गैप देखना है। देयर इज अ गैप, उसमें गैप देखना और उस गैप को फुलफिल करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। बीटेक कर रहे बच्चे को यही नहीं पता कि भाई मेरे को करना क्या है। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस, जिसके लिए मैं आप लोगों के पास हूं यहां पे, कि पहले तो ये पता हो बच्चे को, करना तो बात की बात है, तो मेरे को यही नहीं पता भाई मेरे को एसजेवीएनएल में जाना कैसे है। मेरे को पता ही नहीं है, नाम तो सुन लिया कि हिमाचल के अंदर ही, आज शायद पता लग गया आपको, कुछ लोगों को तो आज पहली बार पता होगा कि एसजेवीएनएल एक पब्लिक सेक्टर है और हिमाचल के अंदर ही है, और तुम लोग उसमें जा सकते हो। अब आप लोग दिमाग में हिट करें। अब दूसरा स्टेप हो गया कि ठीक है ऑप्शंस पता लग गई है, लेकिन अब उसको उस तक पहुंचना कैसे है, प्रिपरेशन वाला पार्ट। फिर आ गया ठीक है सर प्रिपरेशन भी होगा, रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया सर, इसके बाद जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है सर, इसके बाद इंटरव्यू भी है सर, मेरे को हाई स्टडीज में जाना है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या पीएचडी प्रोग्राम के लिए सर, वहां पे भी इंटरव्यू होता है सर, मेरा गेट में इतना मार्क्स आ गया मेरे को पता ही नहीं मैं अप्लाई कहां पे करूं सर, उसके बाद फिर से अगेन इंटरव्यू, फिर एंड में डिसीजन लेना सर, मेरे पास ये 3 सिलेक्शंस आ गया, मैं कहां ज्वाइन करूं। सो ये वो चीजें हैं कि जो आपको लाइफ में, अगर आप चाहते हो एक बहुत अच्छा करियर बनाना, अगले 4-5 साल के अंदर आपको ये फेस करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो अभी 2-4 साल लगेंगे सेटलमेंट होने में। मे भी शायद आप लोगों में से बहुत जो शार्प माइंडेड होंगे या जो चीजों को समझ जाएंगे, मे भी उनका 1 साल में करियर बन जाए, कईयों को 2 साल लगेंगे, कईयों को 5 साल लगेंगे। 5 साल उसको लगेंगे जो जिसका 1 साल में बन जाएगा, वो उसको फॉलो करेगा जब उसका बन जाएगा कि हाँ यार मेरे क्लासमेट होता था उसने ये किया, मैं उससे बात करता हूं तूने कैसे किया, फिर वो बताएगा, फिर हम करना स्टार्ट करेंगे। राइट, ये चीज होती है।
तो इंजीनियर्स करियर पॉइंट, ये हमने जो प्लेटफॉर्म्स ओपन किए हैं, ईसीपी हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था, 2011 में हमने स्टार्ट किया, हमने प्रिपरेशन करवाई और बच्चों को आईआईटीज भेजा, एनआईटीज भेजा, पब्लिक सेक्टर में भेजा, अब्रॉड भेजा, उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम के लिए गए, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए, हर डोमेन में हमने स्टूडेंट सेंड किए, भेजे वहां पे। और अब मैं उन सभी का जो कंक्लूजन है, जो मैं देखता हूं कि वो अगले अब 5, 7, 10 साल के बाद क्या सोच रहे हैं, उसी का एनालिसिस करके ही मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूं कि ये होता है यार एक्चुअल में बाद में जाके। देन वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म। योरपीडिया इज टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रफली 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स आर देयर। और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको पूरे इंडिया का बच्चा, स्पेशली जिसने हायर स्टडीज डोमेन के लिए जाना है, वो फॉलो करता है इसको। जो हायर स्टडीज डोमेन के लिए जाना चाहता है या पब्लिक सेक्टर में भी जॉब में भी जाना चाहता है, बिकॉज वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाता है फॉर इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, जीटीज या रिटन एग्जाम जो पब्लिक सेक्टर के होते हैं। गेट एग्जाम इज वन ऑफ द एग्जाम, तो हम लोग उसको प्रिपेयर, ईसीबी लिमिटेड है रीजन तक कि चंडीगढ़ में हम लोग बैठे, पंजाब से बच्चा आता है, हरियाणा से आता है, हिमाचल से आता है, जम्मू कश्मीर से आ जाएगा, चंडीगढ़ से आ जाएगा। बट योरपीडिया हैज नो लिमिट, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है। उसके बाद तीसरा, देन वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया ग्लोबल। 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया, वेयर वी आर गाइडिंग स्टूडेंट्स टू गो अब्रॉड। वी आर गाइडिंग स्टूडेंट्स टू गो अब्रॉड इन द टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर आपको वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में जाना है तो कैसे जाना है, फॉर दैट दिस प्लेटफॉर्म इज देयर, दैट इज द योरपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म। अब स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। मैंने आपको बताया कि बीटेक के बाद आपके पास जितना भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल होता है, 6 मैंने ऑप्शंस बताया, वो सारी की सारी ऑप्शंस जो है वो एक ही एग्जाम के थ्रू ओपन हो जाता है, और दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जाम। अब वो कैसे ऑप्शंस ओपन होता है वो मैं सारा आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मेरे को ये बताओ, आप लोगों में से कोई यहां पे है कि जिसने गेट के लिए अप्लाई किया है कोई यहां पे? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोग उसका गेट के एग्जाम का लास्ट डेट निकल चुका है? पता नहीं यार, कल है लास्ट डेट, कल है लेट फीस के साथ अप्लाई करने का लास्ट डेट, राइट? अभी एक्सटेंड हुआ था। हाँ, अब एक लेट फीस के साथ, वो विदाउट लेट फीस वाला 13 था, अब लेट फीस के साथ तुम अप्लाई कर सकते हो। कल का लास्ट डेट है गेट के लिए अप्लाई करने का, जो भी अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन करना मत जब तक मैं एंड तक कंप्लीट ना कर दूं, जब तक तुम्हें लगे ना कि हाँ यार इसको करने का कुछ तो फायदा है, ये जो ब्लॉक बता के गया उसका कुछ तो फायदा है। थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, गेट का एग्जाम है क्या यार। देखो, गेट इज बेसिकली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं कि गेट का एग्जाम स्टार्ट क्यों हुआ था। गेट का एग्जाम जो स्टार्ट हुआ था, दैट वाज टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए दिस एग्जाम वाज स्टार्टेड। ठीक है जी। अब जब भी एग्जाम, अब बोलोगे सर जब गेट का एग्जाम तो अभी स्टार्ट हुआ है, 80s में कहीं पे स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले हायर स्टडीज नहीं होती थी? होती थी, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या पड़ा? रिक्वायरमेंट ये पड़ा, अब जब हम हायर स्टडीज प्रोग्राम की बात करते हैं, मास्टर प्रोग्राम की बात करते हैं या पीएचडी प्रोग्राम की बात करते हैं, तो उसमें होता क्या है? आपको क्या लगता है वहां पे क्या करते हो आप लोग? जाके पढ़ाई करते हो जैसे बीटेक में कर रहे हो? हाँ, और क्या करते हो वहां जाके? वहां पे तुम किसी न किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हो, किसी न किसी टॉपिक पे क्या करते हो? रिसर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सिविल स्टूडेंट है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपको एक अब रिसर्च किस टॉपिक पे करोगे? एक पॉइंट अगला ये आगे, किस टॉपिक पे रिसर्च करोगे? आप उन टॉपिक्स पे रिसर्च करोगे जो प्रोफेसर के पास प्रॉब्लम्स हैं। प्रोफेसर ही गाइड करेगा ना आपको, करेगा, क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट होते हैं। किसके प्रोजेक्ट होते हैं? इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट होते हैं। किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपकी अटल टनल बनी है, अटल टनल बनी है नहीं, अभी बन गई है वो। अब उसके ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आईटी मंडी में ही चल रहा है, बहुत बच्चे उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि सर इसके ऊपर जो नेचुरल हजार्ड्स होगा, अर्थक्वेक वगैरह या अपना रोक इसमें और अपना लैंडस्लाइडिंग वगैरह, या कोई बम भी फेंक दे उसके ऊपर, नेचुरल तो नहीं है, मतलब जो आर्टिफिशियल हजार्ड्स भी कुछ भी हो सकता है उसके ऊपर, उसको वो कितना इंपैक्ट ले सकता है, ये एक प्रोजेक्ट है, राइट? अब इसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, इसके ऊपर कौन 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 गाइड कर सकता है उसको, बच्चों को, और उसके लिए जो उसका स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा वही कर पाएगा ना, हाँ या ना? अब वो स्पेशलाइज्ड पर्सन कहां पे होते हैं आपको क्या लगता है? इंडस्ट्री में होते हैं या इंस्टीट्यूट्स में होते हैं? कहां होते हैं स्पेशलाइज्ड पर्सन? इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, इंडस्ट्रीज में नहीं होते हैं।
अगर कोई इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम आती है, वो ये नहीं देखता मेरा R&D डिपार्टमेंट क्या है, वो जाता है कॉलेज के अंदर, ढूंढता है वो प्रोफेसर जो उस प्रॉब्लम का माहिर है, एक्सपर्ट है जो उस डोमेन का, वो ढूंढेगा उसको, फिर उसको बोलेगा ये है जी प्रॉब्लम, आप इसके ऊपर काम करो, आपके पास 3 साल का टाइम है, ये पकड़ो 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, मेरे को इसका सोल्यूशन दे दो। ठीक है नहीं? अब उस प्रोफेसर के पास आ गया प्रोजेक्ट, उसके पास पैसा भी आ गया, अब उसको चाहिए बंदे जो उसके काम कर सकते हैं उसके अंडर। कौन होंगे वो पर्सन? आप लोग जो वहां पे जाके मास्टर्स करेंगे या पीएचडी करेंगे। वो प्रोफेसर बोलेगा मैं, मेरे पास पूरी नॉलेज है इस चीज का, मैं आपको गाइड करता हूं, तुम ऐसे ऐसे करना स्टार्ट करो, एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करो। एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो कुछ डाटा आएगा, है ना? आप करते हो ना प्लस इसमें अपने लैब्स में आप करते हो ना एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट्स करते हो ना वहां पे, कि अगर इतना वेट डाल के देख लिया तो ये रीडिंग आया, इतना वेट डाला तो इतना डिफ्लेक्शन आया, ये किया तो ये आया। होता नहीं ऐसा? करंट बढ़ा कम करके देख लिया तो ये आउटकम आई है, ये करके देख लिया तो ये आउटकम आई है। ऐसे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं होते? हाँ या ना तो बोलो। अब वो हो गया डाटा कलेक्शन, हो गया डाटा कलेक्ट हो गया। अब उस डाटा का क्या कर रहे हो तुम? उस डाटा के बेस पे आज का टाइम वो आ गया है, अगर 10-15 साल पीछे चले जाओगे तो फाइट होती थी डाटा कलेक्शन के ऊपर। आज का फाइट डाटा कलेक्शन का नहीं है। उसको ये पता है कि अगर इतनी फोर्स का या इतने इंपैक्ट का अगर अर्थक्वेक आ गया तो ये कोलैप्स हो जाएगा। ये डाटा है उनके पास। अब आती है बात सॉल्यूशन की, बचेगा कैसे? समझ रहे हो पॉइंट? अब आती है बात बचेगा कैसे। उस डाटा को यूज करके हमें सॉल्यूशन देना है कि तुम ऐसा कर लो, इतना इतना डेप्थ में कर लो, या कुछ भी, जो भी एक्सरसाइज है, जो भी वो बताएगा उस डाटा के बेस पे। सो इस तरीके से रिसर्च होती है। तो रिसर्च क्या होती है? पढ़ाई होती है कि जॉब होती है? रिसर्च क्या होती है? जॉब होती है। रिसर्च पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, नो डाउट कि उसमें तुम्हें थोड़ा पढ़ना जरूर पड़ता है कि उसके बेस पे जो पुराने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें क्या आउटकम आई थी, या उन्होंने किस लेवल तक एक्सपेरिमेंटेशन कर लिए थे। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बड़े सिंपल से वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं मैं। जो पेपर लिखे होते हैं, जो प्रीवियस पेपर होते हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि मैंने इतना लोअर तक डाल के देख लिया तो ये रिजल्ट आया, बस। अब आप बोलोगे यार इसने यहां तक काम कर लिया, मेरे को इसके ऊपर आगे वाला काम करना है, राइट? तो उसका ये फायदा होता है कि जो तुम काम करते हो, जो तुम वहां पे बैठ के रिसर्च कर रहे हो, उसको तुम लिख देते हो पेपर की फॉर्म में, उसको पब्लिश कर देते हो बाकियों के रेफरेंस के लिए, कि मैंने भाई यहां तक काम किया तो एनर्जी ना लगा, तो इसके अलावा कुछ काम कर लो। समझ रहे मेरा पॉइंट कि नहीं? ये होती है रिसर्च। तो रिसर्च क्या होती है? एक तरीके की जॉब होती है, क्योंकि रिसर्च करने के तुम्हें क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। मास्टर्स या पीएचडी करने के पैसे मिलते कि नहीं मिलते तुम्हें? हाँ या ना तो बोलो, मिलते कि नहीं मिलते? क्यों देगा कोई तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई करने के पैसे? क्यों देगी गवर्नमेंट तुम्हें पढ़ने के पैसे? गवर्नमेंट इसलिए पढ़ने के आपको पैसे देगी, पहली चीज गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट है। वो जो 2 करोड़ 1 करोड़ इंडस्ट्री ने दिया वो गवर्नमेंट के पास गया अल्टीमेटली, और उसी में से तुम्हें वो आपको स्टाइपेंड दे रहा है, पहला चीज। अब उससे क्या हो रहा है? सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री में टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, अगर यहीं पे तुम्हें अपनी कार्स बनानी है, यहीं पे मिसाइल्स बनानी है, यहीं पे टैंक्स बनाने हैं, तो वो क्या कंट्री दूसरी से तुम टैंक ले सकते हो, वो तुम्हें टेक्नोलॉजी नहीं देगा। देगा कोई अदर कंट्री टेक्नोलॉजी? नहीं देगा। तो तुम्हें यहीं पे डेवलप करनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड, कि जिसमें हायर स्टडीज को प्रमोट किया जाए और तुम्हें रिसर्च को, मतलब एक्चुअल में रिसर्च को प्रमोट किया जाए कि हम अपनी चीजों को यहीं पे बनाना स्टार्ट करें। सो दिस इज व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। और मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को सेल्फ सस्टेन करने के लिए, दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग यू द स्टाइपेंड फॉर दैट। कितना स्टाइपेंड मिलता है मास्टर्स में? 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर तुम्हें एक महीने में 12,400 रुपए मिलने लग जाए, और जिसमें तुम्हारा खर्चा 5,000 है, कॉलेज का सारा मिल मिला के, सेल्फ सस्टेन कर लोगे अपने आप को? घर से पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। सो ये मॉडल इस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है शायद 21-22 साल के बाद हमें जल्दी से जॉब करनी है, जिसकी शायद हमें जरूरत नहीं है अभी करने की। क्योंकि अभी अगर तुम जॉब में एंटर करोगे, मे बी आपको कोई 10, 20, 30 हजार रुपए दे देगा, 3, 4, 5 लाख 7 लाख का पैकेज दे देगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा कोई ब्रांडिंग नहीं हुआ है। तुम्हारे ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कोई करने को तैयार होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? आपके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कब करेगा? जब तक तुम्हारा कोई ब्रांडिंग ना हो, तुमने कोई अच्छे टॉपिक के ऊपर काम ना किया हो, तुम्हारी कोई स्पेशलाइजेशन ना हो।
तब तक तुम्हारे पर कोई पैसा नहीं लगाएगा। अगर तुम किसी चीज के एक्सपर्ट ही नहीं हो, तुम्हें कोई क्यों रखेगा? तुम कहीं पे टीचिंग करने के लिए जाओ, जब तुम्हारे अंदर टीचिंग स्किल ही नहीं है, तुम्हें कोई रखेगा? चाहे तुमने पीएचडी क्यों ना किया हो, रखेगा तुम्हें कोई? नहीं रखेगा। यही चीज है बड़ी सिंपल सी, कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर अब ये टेस्ला लगा लो या बीवाईडी लगा लो, जो जितनी भी ई व्हीकल्स बना रही है कंपनीज, अब उसको अगर सपोज किसी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट हो या किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट हो, वो बीटेक के पास जाएगा या मास्टर्स उस डोमेन के स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाएगा? किसके पास जाएंगे? वो उस डोमेन के स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाएंगे। आपको लगता है कि अगर उसको उसका स्पेशलाइज्ड पर्सन मिलेगा, उसको पैसा देगा? देगा कि नहीं देगा? क्यों देगा? दो रीजन से, एक तो वो अपनी डोमेन का स्पेशलाइज्ड है, दूसरा उसकी ब्रांडिंग, कि उसने जो अपना मास्टर्स किया है, जो पीएचडी किया है, वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से किया है, जिसका वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है, जिसको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। किन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं मैं? किन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं मैं? आईआईटी की बात कर रहा हूं मैं, एनआईटीज की बात कर रहा हूं, ट्रिपल आईटीज की बात कर रहा हूं मैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तक आपने कुछ किया नहीं किया, कोई मैटर नहीं करेगा, बिलीव मी। ये गेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपके आने वाली जनरेशन की लाइफ को सेट कर सकता है। ये एक ऐसा एग्जाम है, क्योंकि तुम्हारा पास जब पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा ना, पैसा एक ऐसी चीज है जो चेंज ला सकता है, लेकिन वो पैसा आपको कोई तब देगा अगर तुम कोई चेंज ला सकते हो, अदरवाइज नहीं। भाई अगर तुम्हारा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि जिसमें तुम बैटरी, अगर सपोज कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कोई कंपनी, अगर सपोज तुम उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं कर सकते, तो तुम्हें वो नहीं रखेगा। ऐसा बंदा लाएगा ना कि जो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके, उसके ऊपर काम कर सके, उस बैटरी के ऊपर, कि जिससे जो गाड़ी 350 किलोमीटर चल रही है वो 400 किलोमीटर चलनी स्टार्ट हो जाए। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें ये? अब बात करते हैं गेट एग्जाम की। मेरे को नहीं पता कि आपको कितनों को पता है कि गेट एग्जाम का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, पहली चीज एक दिमाग में रखना कि गेट एक बहुत ही इजी और सिंपल एग्जाम है। पीछे करता हूं, नहीं तो उसको पढ़ी जाओगे। गेट एक बहुत ही इजी और सिंपल एग्जाम है अगर तुम स्ट्रेटेजी बना के चलोगे। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डंकी वर्क करने लग जाते हैं कि सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारा कुछ करना है। नहीं रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे जो गेट के थ्रू जो करियर ओपन हो जाता है वो 40 नंबर से ओपन हो जाता है। अगर तुम गेट में 40 नंबर भी ले आए, तुम्हारा करियर ओपन हो जाएगा। चाहे मैं हायर स्टडीज की बात कर रहा हूं, चाहे मैं जॉब की बात कर रहा हूं। 40 नंबर, मेयर 40 नंबर 100 में से, और तुम इजीली ला सकते हो अगर तुम बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ और थोड़ी मेहनत कर लो। मेहनत का तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, इसके बारे में तो कोई डिस्कशन होना ही नहीं कि सर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ना नहीं कह पाऊंगा किसी भी चीज में, चाहे तुम्हारी कोई जॉब है, चाहे तुम हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, चाहे कोई कंपटीशन के लिए जा रहे हो, वो तो रिक्वायरमेंट है ही है। यहां पे भी तुम बीटेक कर रहे हो, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए। समझ रहे नहीं समझ रहे पॉइंट? तो अगर तुम स्ट्रेटेजी बना के चलो 60-65 नंबर का, सिर्फ 60-65 नंबर का तैयारी करना है, यू कैन इजीली डू गुड इन गेट एग्जाम। स्ट्रेटेजी के साथ कि मेरे को करना ही भाई 60 नंबर का, मेरे को 100 नंबर का करना ही नहीं है, मेरे को वही पार्ट करना है जहां से पेपर आता है। मेरे को क्या जरूरत है इतना सारा पढ़ने की? यही पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, जहां पे हम समझते हैं कि गेट का तो सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इसका सक्सेस रेट तो 20% है, 80% तो फेल हो जाते हैं। जो 80% फेल होते हैं उसमें से 60% पढ़ के ही नहीं जाते। मे भी शायद इस प्रेजेंटेशन सुनने के बाद 2-4 गेट के एग्जाम फिल जरूर कर देंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। फैक्ट है ये, क्योंकि हम लोग इसी चीज में डील करते हैं। हमें कोचिंग में आके पैसा दे दे के भी नहीं पढ़ते हैं, तो तुम लोग तो तब भी कोई पैसा नहीं दोगे। सेल्फ स्टडी मान लो सपोज करते हो, पैसा दे के भी नहीं पढ़ते हम लोग, पता नहीं क्यों, जबकि एग्जाम्पल सारी है, एग्जाम्पल सारी सेट की हुई है, बहुत रोल मॉडल्स हैं। अभी कल परसों एचएएल का रिजल्ट था, है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का रिजल्ट है, 25 सिलेक्शन हुई है हमारी, 25 सिलेक्शन। वो रोल मॉडल ही तो है यार, कि अगर वो कर सकते, वो बोल रहा है, उसके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं कि तू बता यार तूने कैसे क्रैक किया, कैसे किया। वो बोल रहा है कि सर आई वॉज ऑर्डिनरी पर्सन, मैं एक बड़े छोटे से कॉलेज से था, जिसको कोई भी नहीं जानता पूरे इंडिया के अंदर शायद, लेकिन सर मैंने मेहनत की, मैंने निकाल लिया।
मेहनत एक ऐसी चीज है, या गेट का एग्जाम एक ऐसी चीज है, तुमने अभी तक कुछ किया नहीं किया कोई मैटर नहीं करेगा। ये एक ऐसा एग्जाम है जो पिछले पाप सब धो देगा। ये एक ऐसा एग्जाम है और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल एग्जाम है। दूसरा चीज, गेट का एग्जाम अगर आप प्रिपेयर करते हो गेट के एग्जाम में, आपका क्वालिफाई हो चाहे नहीं हो, क्वालिफाई होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वालिफाई नहीं भी होता, कौन सा ऐसा एग्जाम है पूरे इंडिया के अंदर जिसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम है, मिनिमम है? कौन सा एग्जाम है वो? यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का। कितना सक्सेस रेट है उसका? 1% से भी कम। 1250 सीटें होती है। हाँ, कितने लोग लिखते हैं उस एग्जाम को? 5-7 लाख लोग लिखते हैं और सिर्फ 1250 के लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाकी जिसका क्वालिफाई नहीं हो वो कैपेबल नहीं है? आपको क्या लगता है? कैपेबल नहीं है वो? बिल्कुल कैपेबल है। अगर मान लो उसका सिविल सर्विसेज नहीं निकला, आपको क्या लगता है कि उसके और एग्जाम नहीं निकलेंगे? उसके और एग्जाम निकलने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत हाई हो जाती है। दिस इज सम सिमिलर टू गेट, कि अगर गेट का एग्जाम मान लो नहीं भी निकला, मैं बोल रहा हूं नहीं निकला, मान लो एक वर्स्ट केस, लेकिन तुमने मेहनत की अच्छे तरीके से, तो तुम्हारी बाकी एग्जाम निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई हो जाती है। क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जो रट्टे वाला एग्जाम नहीं है, क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है, ये समझने वाला एग्जाम है। और गेट क्वालिफाई अगर आपका होता है तो उसका मतलब ये होता है कि तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग का, तुम्हें तुम्हारी ब्रांच का, तुम्हें तुम्हारी सब्जेक्ट्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें उसका नॉलेज है। ये इस चीज का प्रूफ है। 9 सीजीपीए लाना, 6 सीजीपीए लाना इस चीज का प्रूफ नहीं है कि 9 सीजीपीए वाला अच्छा है पढ़ने में और 6 सीजीपीए वाला अच्छा नहीं है। लेकिन अगर 6 सीजीपीए वाला गेट क्वालिफाई कर गया और अगर 9 सीजीपीए वाला क्वालिफाई नहीं कर पाया, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। इस चीज का प्रूफ कि ये इसका यार अंडरस्टैंडिंग है, चाहे उसने 4 साल पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन गेट के टाइम पे उसने पढ़ के क्वालिफाई कर लिया। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको पूरी लाइफ लॉन्ग तुम इसका फायदा उठा सकते हो, अपने रिज्यूमे के ऊपर, अपने सीवी के ऊपर पूरी लाइफ आप इसको लिख सकते हो। चाहे कभी भी किसी भी जॉब के लिए जाओ कि सर आई वाज गेट क्वालिफाइड इन 2025 24, जब भी आपका टाइम आएगा, चाहे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, इसका इतना वैल्यू है। 4 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक का गेट क्वालिफाई है, 3 का क्वालिफाई नहीं है, आपको क्या लगता है वो इंटरव्यू में उसको बेनिफिट मिलेगा? आपको क्या लगता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 101% मिलेगा। तो अगर एक छोटी सी इंटरव्यू उसका बेनिफिट हो रहा है तो सोच के देखो, अदरवाइज जब उसको जिस पर्पस के लिए एक्चुअल में वो एग्जाम मिला है उससे कितना बेनिफिट हो रहा होगा आपको। समझ रहे हो? आ रही है बात समझ में? ये ऊपर से नहीं कर रही है? आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे को कहीं पे भी, ठीक है? गेट का एग्जाम स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्लान के सक्सेस होने में और उसके फेलियर होने में। स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के फेलियर में और उसके सक्सेस होने में। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग, स्ट्रेटेजी। और दूसरा पार्ट आ गया उसका, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? उस प्लान का एग्जीक्यूशन। कि मैंने भाई स्ट्रेटेजी तो बना ली कि मैंने ये 6 सब्जेक्ट करने हैं, इस 6 सब्जेक्ट में से 60 नंबर का पेपर आएगा, मैंने डेली 4 घंटे पढ़ना है, पढ़ा ही नहीं। स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी बना ली लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। और ये चीज सिर्फ गेट एग्जाम के साथ रिलेटेड नहीं है, मैं गेट वर्ड यूज कर रहा हूं, ये हर एग्जाम के साथ रिलेटेड है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गेट नहीं, मेरे को तो अपना स्टेट जेई का एग्जाम निकालना है। अगर तुम ये स्ट्रेटेजी या उसका एग्जीक्यूशन नहीं सही होगा, बिलीव मी फ्रेंड्स, नहीं निकलेगा। चाहे वो तुम छोटा सा एग्जाम क्यों ना निकाल लो, चाहे वो तुम्हारा एक छोटा सा बैंकिंग का एग्जाम भी क्यों ना हो, नहीं निकलने वाला। गेट का एग्जाम क्या होता है? जिसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं, 65 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर का एग्जाम होता है और इसमें आपको 180 मिनट का एग्जाम होता है। पूरी इंडिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 1 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए वो 3 मिनट का टाइम दे रहा है, कोई भी नहीं है। और मेरे को 65 क्वेश्चन नहीं करने, मेरे को 40 क्वेश्चन करने हैं। 40 क्वेश्चन 180 मिनट।
65 क्वेश्चन को 180 मिनट से मत डिवाइड करना, क्योंकि मेरे को 40 ही करने हैं, क्योंकि मेरा उससे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। क्योंकि 100 करने के चक्कर में आप बहुत ब्लंडर कर देते हो, बहुत बच्चे देखे हैं मैंने। तो 40 क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट्स के कैसे करने वो मैटर करता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, कोर सब्जेक्ट पढ़ो अपने, 5-6 सब्जेक्ट है वो करके चले जाओगे, जिसमें से तुम्हारा 60-70 नंबर का आएगा पेपर। मैथमेटिक्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब्जेक्ट कर लिए ना, 60+ नंबर का है इसका वेटेज इन 4-5 सब्जेक्ट्स का। और कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना एनालॉग, ना कम्युनिकेशन, सॉरी ना सिग्नल, ना डिजिटल, नहीं करना। ये 4-5 सब्जेक्ट कर लो जो भी इलेक्ट्रिकल के हैं। कौन सी ब्रांच आपकी? इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए बड़ी सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, 2-4 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं आपके, कौन कौन से, कोआ वगैरह हो गया, और कौन सा है कर रहे प्रिपरेशन, या ऐसी भरा अभी, ऐसी भरा अभी 4-5 सब्जेक्ट कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। जिसका वेटेज 60 नंबर हो और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ के हो, सारा करने के पीछे मत भागना, नहीं रिक्वायरमेंट। और तीसरी ब्रांच कौन है यहां पे? सिविल। सिविल के लिए डिजाइन के सब्जेक्ट सारे छोड़ दो, आरसीसी छोड़ दो, स्ट्रक्चर छोड़ दो, स्टील छोड़ दो, सॉन्ग छोड़ दो सारे सब्जेक्ट से। इजी सब्जेक्ट पकड़ो, सॉइल छोड़ना ही नहीं है, एनवायरमेंट छोड़ना ही नहीं है, हाईवे, सर्वे, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ओपन चैनल फ्लो, मैथमेटिक्स। 60 नंबर का पेपर है ये, जो मैंने बोल दिए, करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है सारा यार। 40 नंबर ले आओ, 40 नंबर लेके मेरे पास आ जाओ, आपको 101% आईटी से कॉल आ जाएगा। और इस बार तो पब्लिक सेक्टर से कॉल आ रहा है इतने नंबर पे। पब्लिक सेक्टर में सीटें नहीं फुल हो रही हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, कौन है इलेक्ट्रिकल के, दोबारा से हाथ खड़े करना। एक रिसेंट में आपको न्यूज बता रहा हूं मैं आपको, मैं पावर ग्रिड का सुना नाम, आपका कोर पीएसयू है, अभी गेट 2023 से वो रिक्रूटमेंट कर चुका है, दोबारा से उसने गेट 2023 से एप्लीकेशन मंगवा ली है, और उसमें एक स्टार मार्क लगा के कुछ वैकेंसीज लिखी हुई है, बैकलॉग। सीटें ही नहीं, बच्चे ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है मार्केट के अंदर। कर ले, मैं डाली इसका वीडियो, मैंने इंजीनियर्स डेवलपमेंट पे डाला इसका वीडियो, मैंने चेक करना। तो मेरे कहना मतलब है, स्पेशली जो कोर ब्रांच है आप लोग, इलेक्ट्रिकल और सिविल, आपके लिए तो पब्लिक सेक्टर बड़े इजीली है, मिल जाएंगे आपको, अगले 2-3 साल तक रहेगा ये। रिवाइव अभी हो रही है चीजें। मैकेनिकल, छोटे से छोटे कॉलेज में भी अगर तो वहां पे मैकेनिकल का स्टूडेंट है, उसकी प्लेसमेंट हो जा रही है, क्योंकि है ही नहीं मार्केट के अंदर मैकेनिकल का स्टूडेंट। आईयूसीएल का इंटरव्यू 1.5 महीना चलता था, 10 दिन चल रहा है इस बार, स्टूडेंट ही नहीं है। मैं आप बोलो सर आपके पास डाटा कहां से आ रहा है, योरपीडिया चैनल ओपन करना, आपको पता लग जाएगा मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूं। कि योरपीडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेंट डाला हुआ है इस पूरी इंडस्ट्री में अंदर, जो फैक्ट दे रहा है, ऑथेंटिक डाटा दे रहा है। तो 40 नंबर का स्ट्रेटेजी, सॉरी 40 क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी बनाना है, 180 मिनट्स का। डिसाइड कर लो कौन से सब्जेक्ट से करना क्या है अभी के लिए, क्योंकि आप फाइनल ईयर में सिर्फ एक काम कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हाथ से 10 बार लगा लो उन 6-7 सब्जेक्ट्स के, मोर देन सफिशिएंट है, तुम्हारा इजीली क्वालिफाई हो जाएगा गेट का एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने 10 बार लगा लिए हाथ से, जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताई दिए, उससे आराम से तुम लोग क्या कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे गेट का एग्जाम। लेकिन हाथ से लगाने समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या पूछा उसने, ऐसा नहीं कि रट्टा मार ले, अच्छा ये क्वेश्चन आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा। समझ वाला एग्जाम है, मैंने पहले बोला आपको, रट्टे वाला एग्जाम नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई है? आ रही है समझ में, नहीं आ रही, ऊपर से निकल रही है। गेट के एग्जाम के कुछ फीचर्स हैं, आप लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो। दिया था किसी ने 3rd ईयर में? पता था आप लोग 3rd ईयर में दे सकते थे? पता था नहीं पता था? पर बताया नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, जूनियर्स को बता देना, 2nd ईयर वालों को बता देना कि तुम लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो। उसके बाद 70-30 मैंने आपको बताया नहीं बताया, जो गेट का एग्जाम पैटर्न होता है, जिसमें से 30% आता है आपका नॉन टेक्निकल पार्ट, तो मतलब 30 मार्क्स का आता है आपका नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसमें से 15 नंबर का होता है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और 15 नंबर का आता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जो आप 10वीं तक पढ़ते हो, और 70 नंबर का आता है आपका टेक्निकल पार्ट, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं,
सिविल के सब्जेक्ट्स आएंगे, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स आएंगे, और अकॉर्डिंगली कंप्यूटर साइंस की। लेकिन 30 मार्क्स जो है मैथमेटिक्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये फिक्स है। 30 में से 20 नंबर तुम इजीली ले सकते हो। 30 में से मिनिमम 20 मार्क्स का स्ट्रेटेजी। पढ़ो मैथ को अच्छे तरीके। मैथ पढ़ा ना सभी ने? M1, M2, M3 पढ़ा ना आपने? अब बंद हो गए, नहीं पढ़ा? 3 मैथ नहीं पढ़े आपने? 3 पढ़े, 2 पढ़े, 1 पढ़ा है? हाँ, कितनी मैथ पढ़ी आपने? फर्स्ट ईयर में तो 2 पढ़ ली होंगी, M1, M2। तीसरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यार हाँ ना तो बोलो। तो बोल भी नहीं रहे। 3 पढ़े कि ज्यादा पढ़ी है? 3 पढ़े। न्यूमेरिकल मेथड भी पढ़े, पढ़े ना? ऑपरेशन रिसर्च भी पढ़े, ऑपरेशन रिसर्च पढ़े सिविल वालों ने। मैकेनिकल तो है नहीं ना यहाँ पे? मैकेनिकल है यहाँ पे? ये तो हाँ ना भी नहीं बोलते यार। तो 15 नंबर का मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग 30 नंबर का हर ब्रांच के लिए कॉमन है, और 70 नंबर का आएगा आपका टेक्निकल। उस 70 में से आपने सिर्फ जो है 30-35 नंबर उधर से, 30 नंबर वो, 60-70 नंबर का तैयारी करना है। 40 क्वेश्चन दिमाग में बिठा लो, 40 क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी, 40 क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन को लगा लेना 10 बार हाथ से। बिलीव मी, आप तो गेट क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन जब बैठोगे ना पढ़ने के लिए, और जब पढ़ने के बाद उठोगे, अपनी आंखें बंद करके क्वेश्चन पूछना अपने आप को कि यार तू ढंग से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बता ईमानदारी से। अपने आप को क्वेश्चन पूछना है। जिस दिन हाँ ना लग जाएगा ना वर्ड, तो इट मीन्स कि तुम सही ट्रैक पे हो। क्योंकि हर किसी को खुद को पता होता है कि वो काम सही कर रहा है, गलत कर रहा है। पता होता है नहीं पता होता है? जब आप कोई काम गलत कर रहे होते हो, आपको पता होता है ना कि आप गलत कर रहे हो काम। ये करते ही नहीं गलत काम। हाँ, करते हो आप लोग गलत काम? नो। अच्छा, अनइंटेंशनली गलत काम हो जाते हैं? पता तो होता है ना कि वो गलत है। हाँ, अब आगे ना, अभी ऐसे आ गया। अच्छा, उसके बाद गेट क्वालिफाई हुआ तो सारी ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद गेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। फिजिकल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन द गेट एग्जाम, राइट? वर्चुअल कैलकुलेटर इज अलाउड। आपके फोन में आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो वर्चुअल कैलकुलेटर का। उसके बाद गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। आप उस स्कोर को 3 साल तक यूज कर सकते हो। गेटिंग? उसके बाद आप लोग 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हो। पता है इस चीज के बारे में? आप एट ए टाइम 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हो। पता है नहीं पता? नो सर। सिविल वालों के पास मैं दिखाऊंगा प्रेजेंट, उसमें एक है स्लाइड कि तुम लोग 2 गेट के पेपर कौन से दे सकते हो या कौन से देने चाहिए तुम्हें। आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्यों जाना है गेट में, मैंने आपको वो सारी ऑप्शंस बताया कि अगर तुम्हें पब्लिक सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हायर स्टडीज में जाना है, स्पेशलाइज्ड डोमेन में जाना है, या जब आपका गेट का आप ओवरऑल अपना प्रिपरेशन करते हो, उससे तुम्हारा टेक्निकल स्किल डेवलप होता है। छोड़ दो उसके बेनिफिट कि उससे मेरे को क्या मिलेगा। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आप गेट का प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हारा जो ओवरऑल जो तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज है, जो तुम्हें बेनिफिट देता है कल को किसी भी और एग्जाम में या इंटरव्यूज में, वो एक इस गेट एग्जाम के थ्रू आपको उसका बेनिफिट होता है, राइट? उसके बाद पब्लिक सेक्टर, जितना भी लोग गेट लिखता है 30-40% लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिसका जो मेन टारगेट होता है दैट इज टू गेट द जॉब इमीडिएटली, और उसके लिए जो पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, ये सारे पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या है? वो तो मेरे को दिख रहा है, HAL है, फुल फॉर्म बताओ। हल। हम लोग परसों प्रेजेंटेशन में थे, वो बोल रहे हैं कि लोगों को ना शॉर्टकट मतलब बनाने का बहुत वो है, शौक होता है कि पूरा नहीं बोलना नाम उसका, शॉर्ट में बोल देना है। स्लाइड, हम लोग पंजाब में थे, उसमें कॉलेज है एक संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वगैरह इसको बोलते हैं स्लाइड। क्या मैंने पहली बार सुना इसका नाम स्लाइड। HAL क्या है? अब सोच के देखो यार तुम्हारा क्या हाल है। बड़ी HAL, और अभी मैं उसकी एग्जांपल लेके आता हूं, अभी सिलेक्शन हुई है, उसका रिजल्ट आया है। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्या बनाती है ये? सर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं फुल फॉर्म तो पता नहीं है ना। ये आपके फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, मतलब जो DRDO का बहुत ज्यादा भार जो है ना HAL ने हल्का कर दिया है।
हेलीकॉप्टर्स HAL बनाता है, राइट। ISRO इसका पता कि नहीं पता? इसके पीछे मतलब इसका ISRO को इतना बनाने के पीछे कौन है, पर्सन कौन थे, क्या नाम था उसका, किस साइंटिस्ट का क्या नाम था उसका? हाँ, ISRO के पीछे बहुत मेहनत हुई है, कैसे ये मतलब कितना फाइट हुआ था इस ISRO एज ए ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी है, BARC और ISRO की कैसे कैसे बनी है ये। कौन सी है वेब सीरीज वो? हाँ, रॉकेट बॉयज। देखी किसी ने? करना हाथ खड़ा। रॉकेट बॉयज नहीं, मैंने तो देखे, मैं तो हाथ खड़ा करूंगा। देखना सभी लोग इस मूवी को, यार तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी कंट्री किस फेजेस से निकली है, तुम्हें पता होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग फील नहीं कर पाओगे। कि क्या नाम था उसका साइंटिस्ट का जिसने ISRO के लिए बहुत मेहनत किया? किसी ने बोला यहां पर रॉकेट बॉय मूवी सीरीज देखी है मैंने। विक्रम साराभाई का नाम सुना है? सुने? नहीं सुना? बड़ी गड़बड़ है यार, एक तो बैठे इतनी दूर हो, लेकिन अब तो मोबाइल है यार हमारे पास। अब कौन सा न्यूज़पेपर में आनी है न्यूज या टीवी पे आएगा? करते क्या रहते हो फिर सारा दिन? मौज मस्ती? हाँ, अब ये तो मत बोलना कि सर पढ़ाई करते हैं। चलो पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। देखो ये कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हुए हैं। दो तरह के पब्लिक सेक्टर होते हैं, सॉरी पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है थ्रू द गेट एग्जाम, कि जब आप गेट का एग्जाम देते हो उसमें आपके कुछ मार्क्स आते हैं, आप अप्लाई करते हो उस पब्लिक सेक्टर में, और उसके बाद उसका होता है इंटरव्यू। एक दो PSU हैं जो इंटरव्यू भी नहीं लेते, कोल इंडिया लिमिटेड इंटरव्यू नहीं लेता, NTPC इंटरव्यू नहीं लेता, ठीक है जी। बाकी सारे PSU इंटरव्यू लेंगे, और कुछ PSU ऐसे हैं जो इंटरव्यू से पहले क्या करते हैं, आपका ग्रुप डिस्कशन भी रखते हैं, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क भी रखते हैं। पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं यार, जिसके पास है इसको भर दो, बाकी मैं आपको रीजन बताऊंगा इसका भरने का पर्पस क्या है। पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं, क्या है? एक तो थ्रू द गेट एग्जाम, दूसरा उसका अपना टेस्ट। कुछ पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो अपना टेस्ट भी लेते हैं। कौन से हैं पब्लिक सेक्टर, आपको पता है जो अपना टेस्ट लेते हैं? पता आप लोग कौन से पब्लिक सेक्टर जो अपना टेस्ट लेते हैं? हाँ, ISRO और HPCL। यस, और भरा किसी ने HPCL का एग्जाम? भरा किसी ने? पता भी नहीं होगा सर, अच्छा एग्जाम निकल गया। ईमानदारी से बताना, किसी को पता ना कि HPCL निकला हुआ था? ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो तुम लूज करते हो। रीजन बिहाइंड हम जान के भी शोर मचाई रखोगे जितना मर्जी, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, यार फायदा उठा लो, अगले साल इलेक्शन है, दबा के नौकरियां आ रही हैं, उसी का फायदा उठा लो, क्योंकि उसके बाद तो फिर 29 में आएंगे फायदे का, पता नहीं कैसे होगा। ये इतनी तो अंडरस्टैंडिंग रखते हो ना कि अगले साल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, तो सिट्टी आएंगी दबा के। इतनी समझ रखते हो कि नहीं समझते हो? तो आ तो रही है, डर तो रही नहीं, पता ही नहीं है सर, कैसे पता चलेगा? अलग अलग प्लेटफॉर्म बहुत फॉलो करते होंगे जो मस्ती मारते होंगे, और अनाप शनाप चैनल बहुत फॉलो करते होंगे जो पैसा लेके बैठे हैं, जो तुम्हारे फोन में सामने दिखा देगा कि हाँ ये है ना, फंडिंग लेके जो बैठ जाते हैं प्लेटफॉर्म, लेकिन मतलब की बात एक भी नहीं करता कोई भी। तो इनमें से कुछ पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो अपना टेस्ट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला HAL, ये अपना एग्जाम लेता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ISRO अपना टेस्ट लेता है। DRDO ने 2010 के बाद रिक्रूटमेंट नहीं की थी, लेकिन पिछले 2 साल से कर रहे हैं। उसके बाद HPCL अपना टेस्ट लेते हैं। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये अपना टेस्ट भी लेते हैं और गेट के थ्रू भी लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया निकला हुआ है फॉर्म, उसका फॉर्म निकला हुआ, यू ऑल आर एलिजिबल फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ATC का होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जूनियर एग्जीक्यूटिव। पता है किसी को यही के फॉर्म निकले हुए हैं? और आप सभी उसमें एलिजिबल हो, यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दैट। ATC का वर्ड पहली बार सुना, ATC है ना?
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पहली बार सुना ना? बोल दो हाँ। पर ये तो पता नहीं तुम्हें फॉर्म निकले हुए इसके, जानने का क्या करोगे? ऐसी और 496 वैकेंसीज हैं, ऑल इंजीनियर्स आर एलिजिबल, जिसने अपनी ग्रेजुएशन में बीटेक में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा है ना आपने? फिजिक्स अभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ना फिजिक्स, मैथमेटिक्स भी पढ़ी है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स जिसने पढ़ा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जिस टाइम पे वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें सभी ग्रेजुएट एलिजिबल है, सॉरी सभी इंजीनियर्स एलिजिबल है, ऑल ब्रांचेस। कॉमन पेपर होता है इसका, राइट? रफली मोर देन 100 एग्जाम्स आपके पास होते हैं जो आप एक साल के अंदर लिख सकते हो। एक साल के अंदर 5-6 तो यहीं पे ही है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, सीपीसीएल, एचआरएल, बीएचईएल, बीडीएल, ऐसे बहुत पब्लिक सेक्टर हैं रफली 100 के आसपास जो अपना टेस्ट लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। और तैयारी कैसे करेंगे सर? मैं आपको क्लियरली बोल के हटा हूं कि अगर आप गेट वाले प्रोसेस से निकल जाते हो, आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बनेगा इंजीनियरिंग को पढ़ने का और समझने का, फिर तुम्हारे एग्जाम उसके बाद क्वालिफाई हो ही जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना? बोलो ना, बोलो यस है ना? मेरी ना को यस बोला ना? ना से देखो, करना ना करना देखो गेम तुम्हारी मर्जी है, मैं यहां पे किसी को कोई फोर्स नहीं करने आया कि तुम करो या ना करो, लेकिन हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे को ये भी पता है कि आप 1-2 दिन के बाद भूल जाओगे, ये चीजें भूल जाओगे ना, है ना? याद कैसे होगा? याद कैसे रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? याद रखना जरूरी है कि नहीं है? चलो ये भी पूछ लूं पहले क्वेश्चन। हाँ क्या क्या? फ्रूट खा के नोट्स बनाएंगे? वो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। पर ऐसी बहुत इंटरेक्शन है, मैं हर कॉलेज में यही बातें बोलता हूँ, सभी कॉलेज में जाके जो मैं यहां पे बोल रहा हूं मैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मैं और निचले स्टेप पे आके बोल रहा हूं मैं। एक तो 3-4 मंजिल नीचे उतर गया हूं मैं। लेकिन बच्चे बहुत अपॉर्चुनिटीज है यार, मतलब हम लोग पता नहीं क्यों आप लोगों ने अपने आप को बहुत एक लिमिटेड जोन में रखा हुआ है। नो डाउट उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है आपका इकोसिस्टम। आपका इकोसिस्टम, आपके पेरेंट्स ने, मेरे को ईमानदारी से बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं इलेक्ट्रिकल सिविल के जिन्होंने इलेक्ट्रिकल सिविल चूज किया कि गवर्नमेंट जॉब जेईई, कि मेरे को अपनी स्टेट में जेईई लगना है बस, सिविल और इलेक्ट्रिकल। बताना मुझे, कर दो आप खड़ी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तो और क्या सोच रहे हो? हाथ तो खड़े उस टाइम पे आपने वैसे भी नहीं किया। हाँ तो एईएसडी तो होता है, असिस्टेंट इंजीनियर क्या होता है? एसडी तो होता है, असिस्टेंट इंजीनियर एसडी होता है। मैं भी बोल रहा हूं ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की, कि अगर आप डिस्कस करोगे बाहर जाके कहीं पे कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल देना पेपर, तैयारी कर, अपने एसएससी जेई की तैयारी कर, या जो स्टेट में निकलते जेई की एई की तैयारी करो तुम उसकी, इससे बहुत दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब मैं कोविड के बाद स्पेशली ये चीज देख रहा हूं, उससे पहले हिमाचल से लोग ना बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते थे गेट एग्जाम लिखने के लिए, अब वो मोटिवेशन टोटली खत्म हो गई है। सीरियसली मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं मैं, क्योंकि कोविड से पहले भी हमने सारे कॉलेजेस कवर किए, अब कोविड के बाद भी कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे बच्चा अवेयर होता था, उसको पता होता था अपने फायदे नुकसान का, उसको चीजों का पता होता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इतना ज्यादा आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, पता हमें तब भी कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के बावजूद। यही प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि हमें ये लगता है कि मैं क्यों अटेंड करूं, गेट का सेमिनार हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ा तो है, सब कुछ सुन लेंगे किसी को, है ना? ऐसा ही नहीं है, है ना? पता तो तब भी नहीं है तुम्हें, तब भी नहीं है। देखो मैं आपको कोई यहाँ पे वो, मतलब इसको पर्सनल मत लेना, सॉरी अगर मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो एक फैक्ट है तुम्हें वो रियलाइज करना पड़ेगा कि ये ऐसा मेरे को पता ही नहीं है यार, मैं किस दुनिया में जी रहा हूं मैं। समझ रहे हो कि नहीं?
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे। उसके बाद हायर स्टडीज में देखो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं गेट के बाद टेक्निकल डोमेन में। एक होता है एमटेक का ऑप्शन, 2 साल का प्रोग्राम है, इसमें 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। देखो जब तुम हायर स्टडीज प्रोग्राम के लिए जाते हो तो वहां पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस कुछ नहीं होता, वहां पे होती है स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होता है जो आपका कोर डोमेन का होता है कि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल की कोर डोमेन होती ही नहीं होती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती उससे आई, क्योंकि लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपने जस्टिफिकेशन किया है अपनी प्रोफेशन के साथ तभी, अदरवाइज नहीं। तो ठीक है मैं कोचिंग लेने चला गया, क्लासें लगा रहा हूं नहीं लगा रहा हूं, पढ़ नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मेरा स्टेट में आके सिलेक्शन हो जाएगा, सॉरी। जस्टिफिकेशन होना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे तुम अपने कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी कंपिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो टाइम तो ऐसे निकल जाना है, मैं आया हूं चला जाऊंगा यहां से, लेकिन तुम्हें अपने बारे में सोचना है, कोई नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में। आपके पेरेंट्स भी आपको सिर्फ जो सपोर्ट कर सकते हैं वो पैसे तक का सपोर्ट कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड सपोर्ट नहीं कर सकते वो। और उनसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी कोई नौकरी लगवा देंगे, कभी नहीं इंजॉय करोगे उस चीज को, और ना ही ऐसा करना। अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपनी ब्रांडिंग लाओ, स्पेशलाइज डोमेन में एंटर करो, अच्छी जॉब को टारगेट करो और पैसा कमाओ खूब। लिमिटेड मत रखना अपने आप को पैसा कमाने तक। 10-15 गवर्नमेंट जॉब वगैरह में लिमिटेड होती है सैलरीज, फिक्स्ड ग्रोथ है वही 8-10% का जो साल का है। पैसा तो प्राइवेट में है, उससे भी ऊपर चले जाओ, पैसा तो तुम्हें बिजनेस में है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर तुम्हें अपना बिजनेस करना है तो तुम्हें हर वो काम करना चाहिए जो तुमने करवाना है, तभी तुम किसी से काम कर सकते हो। अदरवाइज बेवकूफ बना जाएगा कोई भी बंदा, सर इसको तो 2 घंटे लगेंगे, काम वो 2 मिनट का होता है। ऐसा है या नहीं है? जो अगर आप लोगों में से कोई बिजनेस फैमिली से है तो 2 मिनट में बेवकूफ बना देते हो, बहुत तेज होते हैं लोग। लेकिन आपका बेवकूफ तब तक कोई बना नहीं पाएगा अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, अगर तुम्हारे पास स्किल है, नहीं बना पाएगा कोई। अदरवाइज बहुत आसान है बेवकूफ बनाना आज के टाइम पे, है या नहीं है? चाहते हो बनना बेवकूफ? हाँ हाँ, बनाना है? मत बनाना यार, ये भी गलत काम मत करना, बनाना नहीं है, क्योंकि अदरवाइज वो ना एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं होगा। कितने दिन बेवकूफ बना लोगे? तुम्हारा मॉडल वो कभी सस्टेनेबल नहीं होगा। तुम एक बार किसी को ये बोल के तू दे मेरे को पैसा, मैं तेरे को 4 महीने में डबल करके दे सकता हूं, वो थोड़ी देर के लिए तो चल जाएगा सिस्टम, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, सस्टेनेबल नहीं होगा ना मॉडल ऐसा कभी भी। मॉडल सस्टेनेबल तभी होता है जिसमें हर किसी का फायदा हो, तब मॉडल सस्टेनेबल होता है। होता कि नहीं? वर्ड समझते हो सस्टेनेबल का? ये चीज समझते हो नहीं समझते हो? नहीं सोओगे फिर, सो तो नहीं रहे पर बोल भी नहीं रहे हो, ऊपर से तो नहीं निकल रही, तो हाँ या ना तो बोलो। चलो एंड में कोई क्वेरी है आपका किसी भी तरीके का? नो? अब बोलो गो सर, बोलो गो सर। फोन निकालो सारे, इसको स्कैन करो जल्दी से। मेरे को सब्सक्राइबर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए। डू इट फास्ट, निकालो सारे, करो स्कैन। देखो सबसे पहले ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी आ रहा होगा, है? पता नहीं क्या कह रहे हैं, सर्च करने भी आ गया। दो तरह की पीएचडी इसमें लिखती है, एक नॉर्मल पीएचडी लिखती है, पीएमआरएफ का। इसमें क्या हाँ मैं बता, करो करो स्कैन करो जल्दी से। अब 2-3 चीजें हैं, अब मेरे को ये बताओ, जो मैंने आपको चीजें बताई भूल जाओगे नहीं भूल जाओगे? 5 के 2 मिनट के लिए मेरे को सुन लो, फिर एंड कर रहे हैं सेशन को, फिर गो सर हो जाएगा। 2 मिनट के लिए सुनो यार, इसको ले जाना घर, कोई बात नहीं।
मेरे को बताओ कि जो मैंने आपको सारी चीजें बताई भूल जाओगे ना? भूल जाओगे? याद कैसे रखोगे ये बताओ, ये इसका तरीका बताओ मेरे को, याद कैसे रहेगा? चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, वो एक अलग, नहीं इसको नहीं देखते हो। मेरे को बहुत बच्चे कॉल करते हैं, सर ये चीज क्वेरी है मेरा। मैं बोलूंगा ये तो 3 महीने पहले आया था, चैनल तो हाँ सर सब्सक्राइब तो किया हुआ मैंने, लेकिन फिर मिस हो जाते हैं। बेल आइकन दबा दिया? वो इतने तो तुम बेल आइकन दबा के रखते हो। इसको बाद में देखना है, तुम्हारे पास ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं है, फोटो ही है बस। कोई अच्छा लगे कोई फोटो, उसको फोन कर लेना, नंबर दिया हुआ है। आपको एंटर करूंगा और वहां पे जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिलेटेड होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे हम लोग टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे, राइट? अब वही चीज आ गई है, वो स्पून फिटिंग का नेक्स्ट स्टेप आ गया, ये वाला हिलाने वाला। उसके बाद तो अंदर आपको ही करना है, ठीक है? लेकिन ऑप्शन बहुत है, बहुत करियर ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है। और 7th सेमेस्टर एक ऐसा टाइम है जहां पे बच्चे अब तुम्हें जागना पड़ेगा। अगर तुम अच्छा करियर बनाना चाहते हो, अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ करना चाहते हो, बिलीव मी, अभी तक जो किया है नहीं किया कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने आने वाले 2-4 साल ढंग से इन्वेस्ट कर दिए तो वो वाली स्टेज से आप बाहर आ जाओगे जिसमें कोई ट्रबल आप लोगों को होगा, राइट? कोई भी कोई क्वेरी है किसी तरीके का आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी। अच्छा अभी क्वेरी मेरे से पूछे कि मैंने जब पीएमआर इसमें डायरेक्ट पीएचडी वाला ऑप्शन दिया था तो वहां पे 2 तरह की पीएचडी थी, एक था नॉर्मल पीएचडी जिसमें तकरीबन 40,000 स्कॉलरशिप है, एक है पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ये भी पीएचडी है जिसमें 80,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है, 80,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप है। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पीएमआरएफ होता है, और उसमें 80,000 का स्कॉलरशिप है। उसके अंदर आपको जो है वो प्रोफेसर के अंडर लग के प्रोजेक्ट करने, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट है, उसमें प्रोफेसर के प्रोजेक्ट होते हैं, ये फर्क है दोनों में। हाँ, स्कॉलरशिप डबल है ऑलमोस्ट। एनी अदर क्वेरी? नो? जल्दी बोलो, गो सर। चलो ओके यार, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।